Dear essay writers, we have literary and philosophical essays. That's why today this lecture is dedicated to literary and philosophical essays. You know that there are two types of essays: issues based and non issues based. We write on an issue like poverty, democracy, global warming. These are issues. And then we have non issues based topics. For example, punctuality is virtue of board. Punctuality is virtue of board. Now, this is not an issue like global warming, climate change, poverty, and democracy, civil military relations, economic problems, social problems, political problems. So it is not a problem, it is not an issue, but still we have to write on it on essay. So that's why it is called non-issues based essay topics. When we have an issue, so we need data, information, knowledge, and we write on the issue, we explain the issue, and then we give solutions to the issue. For example, global warming. So what is global warming? What are the causes of global warming? And what are the solutions of global warming? That is issues based essay. So we need to know scientifically that what is global warming, what are the causes of global warming, and what are the solutions of global warming. It is a scientific essay, it is an academic essay. We have to use some idioms to make it essay, but still most of our discussion that will be on issue. What is the issue? What are the problems? What are the solutions? But in philosophical literary essays, we do not have an issue, an urgent issue or immediate issue, but we just talk about life and different situations of life, and then we present our ideas. So in today's lecture, we are focusing on non-issues based essays. So please make a comment that there are two types of issues. There are two types of essays. Number one, issues based. Number two, non-issues based. Examples of number one: global warming, poverty, democracy, civil military relations, socio-economic political problems. I hope I am audible and visible. There may not be some internet issue. So please make a comment that there are two types of essays. Number one, issues based. For example, global warming, democracy, socio-economic political problems. And number two, that is non-issues based topics. Thank you. Now I see your comments. Non-issues based essays, which are literary and philosophical. Literary and philosophical. Now remember that literature and philosophy
both are interlinked. Literature and philosophy, both are interlinked. One of the branch of philosophy is called aesthetics, the study of beauty. Aesthetics. Aesthetics. Aesthetics is the study of beauty. What is beauty and what is subjective beauty, what is objective beauty? So we have the science of the philosophy of beauty, that is called aesthetics. Now, literature is to present aesthetical sense in language. So, aesthetics is the branch of philosophy, and literature deals with aesthetical sense. So, aesthetics means jamaliyat. Jamaliyat. Jamal means beauty, the study of beauty. So, in philosophy, we discuss what is beauty and what is not beauty. Literature is the aesthetical representation in language. For example, a flower. So, the beautiful of flower, we write a poem and it becomes literature. But in philosophy, we do not write poems, but we discuss that why flower is beautiful. Okay, why cockroach is not beautiful and why butterfly is beautiful. तो फिलॉसफी में ये डिस्कशन है कि भाई ये जो बटरफ्लाई है ये क्यों, तितली क्यों खूबसूरत है और कॉकरोच क्यों खूबसूरत नहीं है. तो ये जो स्टडी है, दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक्स. और जब इस खूबसूरती को हम अल्फाज में बयान करते हैं तो ये अदब या लिटरेचर बन जाता है. तो जो भी एसेज है जिसमें इस तरह की बातें होती है तो वो लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल एसेज होते हैं. और इस टॉपिक को समझना जो है दैट इज हाईली एसेंशियल. अब ग्लोबल वार्मिंग तो हम समझ आती है, डेमोक्रेसी की समझ आती है, पॉवर्टी की समझ आती है, इलिटरेसी की समझ आती है, क्योंकि वो तो इश्यूज है, वो तो मसाइल है. लेकिन ये जो टॉपिक है, प्लीज राइट इट, पंक्चुअलिटी इज वर्च्यू ऑफ बोर्ड. प्लीज राइट द टॉपिक, पंक्चुअलिटी इज वर्च्यू ऑफ बोर्ड. नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी what does this topic mean? Please write the topic and then explain it that what this topic means. इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस टॉपिक को समझना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है. जो इश्यूज है उसको समझना आसान है, टॉपिक को कम से कम बंदी की समझ आती है. नॉलेज है तो आप उस पर लिखोगे, नॉलेज नहीं है तो नहीं लिखोगे. लेकिन लिटरेरी एसेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसके टॉपिक को समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए. अब ये जो टॉपिक है सीएसएस के पेपर में आया है, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? प्लीज राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन दिस टॉपिक. अब इस टॉपिक पे एक दो सेंटेंसेस लिखे, इसका सिर्फ मतलब समझाए कि इसका मतलब क्या है. अगर आपको इसके मतलब की समझ नहीं आती तो फिर आप इस पे ऐसे कैसे लिखोगे? लोग ऐसे में कम मार्क्स इसलिए लेते हैं कि वो टॉपिक समझ नहीं आती, वो पंक्चुअलिटी पे शुरू हो जाते हैं कि जी पंक्चुअलिटी, तो पंक्चुअलिटी बड़ी अच्छी चीज़ है, तो हमें पंक्चुअल होना चाहिए, और मार्क्स उनको मिलते हैं 0. तो फैसल अली सरूही कहते हैं, पंक्चुअलिटी इज द वर्च्यू ऑफ बोर्ड मीन्स दैट बीइंग ऑन टाइम इज समथिंग दैट पीपल हु हैव नथिंग एल्स टू डू
of nothing else to do of value, nothing else, nothing valuable. तो आपका क्या ख्याल है कि CSS में ये जो टॉपिक आया है इसका क्या मतलब है? तो सईद अहमद कहता है कि टू बी पंक्चुअल इज अ ब्लेसिंग ऑफ बोर्डम। इसका क्या मतलब है कि पंक्चुअल होना जो है ये बोर्डम का ब्लेसिंग है, अच्छी बात है। तो मैंने अब लोगों को नोट्स दी है, आउटलाइंस भी दी है, पैराग्राफ्स भी दिए है इस टॉपिक पे इसी ग्रुप में, तो उसको प्लीज क्लास के बाद पढ़ लीजिए। नाउ दिस इज an oxymoron, oxymoron, or it is a satire, 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 or it is irony, or it is a paradox, or these are figures of speech। ये जो मैंने नाम लिए तो ये सारी क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच। अब एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश किताब जो है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, उसमें एक चैप्टर है फिगर्स ऑफ स्पीच, उसको जरूर पढ़े। मेरा CSS का ऐसे उस चैप्टर की वजह से पास हुआ है। दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो अब्दुल गफ्फार कहता है कि इट मीन्स बीइंग इन टाइम इज अ कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ा सा अपना ग्रामर पे नजर रखे, प्लूरल सिंगुलर पे, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अवेयर पीपल। तो अब ये जो है ये एक तरदीदी, एक अजीब किस्म का बयान है। तो चौधरी कहता है डिपेक्ट्स द बोर्डम ऑफ पंक्चुअल पीपल सिंस दे हैव नथिंग एल्स मोर इंटरेस्टिंग टू डू। बिल्कुल। हैदर अली कहता है आर नॉट पंक्चुअल इन दियर अफेयर्स। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है ना। सईद अहमद आपको अक्समरोन के जवाब दे, वो मिसालें दे रहा है। हॉरिबल ब्यूटी, हम कहते हैं बड़ी तबाही है यार, तबाही है, ओ हो क्या बात है यार, ये तो बम है, बम। तो बम जो है वो तो एक खतरनाक चीज है, लेकिन हम उसको ब्यूटी के लिए यूज करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, लिटरेरी लैंग्वेज, फिगर्स ऑफ स्पीच, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, तो ये हम तो आम तौर हमें समझाया जाता है कि भाई पंक्चुअलिटी बड़ी बड़ी अच्छी चीज है। वक्त की पाबंदी जो है एक वर्चू है, एक नेकी है, एक अच्छा काम है, बंदे को पंक्चुअल होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये पंक्चुअलिटी के खिलाफ है, अगेंस्ट पंक्चुअलिटी। कि जो बोर लोग होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, तो हर वक्त घड़ी को देखते हैं कि जी क्या टाइम हो गया, हाँ जी जाओ पहुंच जाओ, ठीक है। पाकिस्तान में तो बंदा जो है बड़ा जलील हो जाता है। मैं जब बाहर मुल्क से पाकिस्तान गया काफ़ी सालों के बाद, तो जी शादी जो है वो 8 बजे है, तो हम 8 बजे पहुंच जाते थे, खाना जो है वो 11 साढ़े 11 बजे लगता था। तो हमने कहा ये क्या मजाक है। तो उसने कहा नहीं जी, हाँ 8 बजे का मतलब ही 11 है, जब आप 8 बजे दोगे तो लोग 11 बजे आएंगे। तो वो तो गलत बात है, बिकॉज योर टाइम इज योर टाइम, बट यू कैन नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ अदर्स। आप एक बंदे को कहा कि जी मैं 8 बजे आऊंगा, तो फिर आपको 8 बजे उधर होना चाहिए। वो गरीब जो है, वाई वी पनिश पंक्चुअल पीपल। जो लोग टाइम पे आते हैं उनको हम क्यों सजा देते हैं कि जो लेट है उनके लिए हम इंतजार करें। सो इन जनरल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइफ एक्टिविटीज, punctuality is a virtue and it is a very good thing. However, people who are philosophical, intellectual, literary kind of people, deep people, they don't care because they are beyond time and space.
They are beyond time and space. And for them, laziness is virtue. कि क्या मॉडर्न दुनिया में हमें जो है ना मशीन बनाया गया, हमसे मशीन की तरह हम चलते हैं। कोई हमारा अपनी मर्जी नहीं है, बस ये मशीन की तरह दौड़ो, टाइम पे पहुंच जाओ, लेजी रहो, छोड़ो ये पंक्चुअलिटी को, अपनी मर्जी करो। तो दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव टॉपिक। इस पे आप दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स दे सकते हैं कि नो, पंक्चुअलिटी इज नॉट द वर्च्यू ऑफ बोर्ड। आप इसकी मुखालिफत भी कर सकते हैं और आप इसके फेवर में भी जा सकते हैं कि नहीं जी ये बिल्कुल सही बात है। जो बोर्ड लोग होते हैं उनका कोई काम नहीं होता, उसका हर काम टाइम टेबल पे होता है, तो वो मशीन की तरह चलता है, उसका ना कोई मर्जी है, ना कोई लेजी है, ना कोई मज़े की ज़िंदगी गुजारता है। तो वो क्या मशीन की तरह, दुकानदार की तरह टाइम पे दुकान खोलता है, टाइम पे बंद करता है, ये भी कोई ज़िंदगी है? So this is a very deep topic. I have given you some basic notes. You can Google it further and you can understand, you can get ideas. अच्छा, लिटरेरी फिलोसॉफिकल एसेस के लिए आपको आइडियाज ज़्यादा होने चाहिए, डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए। इश्यूज के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। नॉन इश्यूज जिस तरह के ये टॉपिक्स है, तो इसमें बंदे क्या डेटा देगा? थोड़ा बहुत आपको फिलासफी से, साइकोलॉजी से वो रेफरेंसेस तो देने होंगे कि इकबाल हमेशा देर से आता है कि भाई मैं इतना बिज़ी बंदा हूँ, मैं बिज़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब इतना मेरी ज़िंदगी जो है वो इतनी वसी है कि मुझे ये पता नहीं चलता। और ये बहुत फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल टॉपिक है। बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम इसको कहते हैं, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, जमान व मकान से बालातर। वो बंदे से किसी ने पूछा आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो उसने कहा मैं अभी काबा में पढ़ के आ रहा हूं, मैं अभी काबा में पढ़ के आ रहा हूं। वो बंदा पाकिस्तान में बैठा था। तो ये जो लोग होते हैं, दे आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। टाइम का मतलब क्या है? जमान। स्पेस का मतलब क्या है? मकान। तो ये जमान और मकान से बाहर होते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि ये टाइम पे ये काम करो, वो करो, ये करो। तो अ क्वीन इज नेवर लेट, एवरीबडी एल्स इज सिंपली अर्ली। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो ये है आपकी बात। तो ये एक गहरा टॉपिक है। गहरा टॉपिक जो है वो फिलोसॉफिकल होता है, वो लिटरेरी होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जमान व मकान के कैद से बालातर होते हैं, क्योंकि टाइम हमें बांधता है। सुबह है, शाम है, कल है, परसों है, सवेरा है, अगली अर्ली है, लेट है। तो ये लोग जो होते हैं ये इन चक्करों में नहीं होते। तो ये एक और लेवल है, हाई एग्जिस्टेंस। ये आम जिंदगी से बालातर की चीज है। ओके, प्लीज राइट द सेकंड टॉपिक। आइडियोलॉजीज थ्राइव on the notion of resistance, yet change is a simulation. Now let us discuss this topic. Topic number 2, ये भी CSS का टॉपिक है, प्रीवियस पास पेपर से। प्लीज राइट द टॉपिक फर्स्ट। Ideologies thrive on the notions of resistance, comma, yet change is a simulation. Ideologies thrive on notions of resistance, comma, yet change is a simulation. इमरान खान, थैंक यू। अच्छा, इस तरह के टॉपिक्स की समझने के लिए आपको इसका लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना पड़ेगा, लिसानियाती तज्जिया। इसके एक एक लफ्ज पे आपको सोचना होगा। आइडियोलॉजी, थ्राइव, नोशन, रेजिस्टेंस, चेंज, सिमुलेशन। क्या आपको हर लफ्ज का माना आता है? डिफिनीशन आता है? हो सकता है किसी को सिमुलेशन करने पड़े कि सिमुलेशन क्या चीज है, या आइडियोलॉजी क्या है, नोशन क्या है। ये भी है कि आपको लैंग्वेज की मीनिंग या डिफिनीशंस आते हैं कि नहीं आते। तो जो भी टॉपिक है इसमें कम से कम अगर आपको एक लफ्ज का मीनिंग नहीं आता तो उस टॉपिक पे कभी मत लिखे, तुक्के मत लगाए।
So now explain this topic in your language. What do you think about it? इस टॉपिक का क्या मतलब है? इसको सिंपल एक्सप्लेन करें। अब इस पे आपने 30 पैराग्राफ लिखने हैं। कितना नॉलेज आपको चाहिए, कितने आइडियाज चाहिए, कितनी स्टडी चाहिए। गूगल को आपको पकड़ना है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश को पढ़ना है, मेरे नोट्स को पढ़ना है, बड़े काम है। अगर आप नहीं समझते तो सिंपल लिखिए, सर आई डोंट अंडरस्टैंड इट, प्लीज एक्सप्लेन इट। हाँ जी, अब इस टॉपिक को अपने अल्फाज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसका मतलब क्या है। हाँ चौधरी साहब, इसका जो प्लीज का पी है ना, ये कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि आप सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं। आप क्लासरूम में बैठे हैं, ये क्लास है, ये कि फेसबुक की चैटिंग नहीं है, गपशप नहीं है। तो प्लीज का जो पी है उसको कैपिटल करें। हाँ, जापान जो है उन्होंने तरक्की की है, लेकिन उनकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो डिस्टर्ब है। इट मीन्स दैट आइडियोलॉजीज आर ओनली इन आवर इमेजिनेशन। हाँ ठीक है कुछ हद तक, लेकिन ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो एक्सप्लेन इट। नहीं आता तो कहीं नहीं आता, सर आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन इट। अब मैंने नोट्स आपको दिए थे, नोट्स आपको पढ़ने चाहिए ताकि आप इस पर कुछ ना कुछ तो लिख सके। हाँ तो आपको नोट्स पढ़नी चाहिए ना अब्दुल गफ़ार। इस क्लास के बाद दोबारा नोट्स को पढ़े तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब इस टॉपिक का मतलब यह है कि आइडियोलॉजीज, व्हाट आर आइडियोलॉजीज। द स्टेटमेंट माइट सजेस्ट, माइट के साथ फिर इस नहीं आता, माइट सजेस्ट, नॉट सजेस्ट्स, that ideologies often gain momentum by positioning themselves against a status quo or opposing force. However, that actual change resulting from these ideologies might be superficial or illusory, linked to a mere simulation rather than a substantial transformation. Okay. तो कभी भी जो है ना प्रोनाउन मत लिखा करें बगैर नाउन के। अब सईद अहमद कहता है इज इट इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो क्या इट का मतलब क्या है, क्या चीज, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। अभी हम दो टॉपिक सामने कर दिए। तो इज इट, ये जो इट है ना, आप प्रोनाउन तब लिखते हैं जब पहले कोई नाउन आ चुका है। नाउन है नहीं तो इट कैसे लिखोगे। आई डोंट रीड योर माइंड्स, मैं किसी का माइंड नहीं पढ़ता, मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूं। तो आपको कम्युनिकेशन क्लियर करनी चाहिए। Ideologies can thrive only when people resist against the oppression and take pragmatic measure to realize the ideas. Otherwise, just change will not contribute and it will be a simulation. हाँ करेक्ट। तो इस टॉपिक का मतलब यह है कि आइडियोलॉजीज थ्राइव, थ्राइव मीन्स ग्रो, थ्राइव मीन्स
ग्रो। ठीक है। नाउ time is not in the nature of human being. You sleep, there is no time. Einstein simply said that relativity, that time is relative. ठीक है ना। आइंस्टाइन का मशहूर कोटेशन है कि आप किसी के हाथ में जो है ना वो डाले, आग डाले, या वो अपने महबूब के गोद में बैठा हो, तो जो महबूब के गोद में बैठा है उस पे दिन जो है वो घंटे हो जाते हैं। अगर आपके हाथ में आग है तो 5 मिनट जो है वो पूरा दिन बन जाता है। तो टाइम इज रिलेटिव, द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तो उसी तरह आपका टाइम जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप सो रहे हैं 8 घंटे अपनी नींद की, आपको पता नहीं चला, दूसरा बंदा आपके साथ बैठा है तो 8 घंटे वो बैठा है, तो वो कितना थक जाएगा। टाइम वही है। सो इट इज नॉट इन ह्यूमन नेचर। ओके, सो टॉपिक नंबर 2, आइडियोलॉजीज थ्राइव, आइडियोलॉजीज ग्रो। टॉपिक को पहले सिंपल लैंग्वेज में करें ताकि आपको समझ आ जाए, या उसको उर्दू में तर्जुमा करें। आइडियोलॉजीज थ्राइव ऑन द नोशंस, नोशन मीन्स आइडिया, on the notion of resistance. आइडियोलॉजीज जो है वो रेजिस्टेंस, मुजाहिमत के आइडियाज, कंसेप्ट पे चलते हैं। मतलब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो पाकिस्तानियों की जो मुजाहिमत थी उस वक्त की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ या हिंदू के ख़िलाफ़, तो उस मुजाहिमत की वजह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बन गया। कम्युनिज़म भी एक आइडियोलॉजी है कि भाई गरीब और अमीर जो है, मुख्तलिफ तबके है, क्लासेस है, स्ट्रगल है, तो कम्युनिज़म एक आइडियोलॉजी बन गई है। ठीक है। लेकिन ये कहता है कि अब ईरान में देखो कि ईरान में रिवॉल्यूशन आ गया 1979 में, खुमैनी ने इनकलाब लाया अपनी आइडियोलॉजी की बेस पे, लेकिन ईरान को क्या मिला? कम्युनिज़म ने किसी को क्या दिया? पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं वो भी यही बात करते हैं कि यार पाकिस्तान बना न बना हम क्या, हम तो वही गरीब के गरीब है, हमें क्या मिला? तो yet change is a simulation. Simulation means that it is an exercise which is not real, which is rehearsal, which is false. Simulation exercise ये है कि भाई आप बंदूक किसी को सिखाते हैं कि जी बंदूक में बंदे को कैसे मारते हैं, तो आप बंदूक में नकली गोली डालते हैं और सामने नकली बंदा बिठाते हैं और वो बंदा गोली से बंदे को मारता है, लेकिन वो रियल नहीं होता, वो सिर्फ एक्सरसाइज होता है, मश्क होता है, ट्रेनिंग है। तो ये जो आइडियोलॉजीज है ये कोई चेंज नहीं लाता, ये सारी फॉल्स चेंजेस है, ये रियल चेंजेस नहीं है। यूरोप ने, अमेरिका ने इसी बात को समझा। ठीक है, इसी बात को उन्होंने समझा। तो यूरोप में, जर्मनी में, अमेरिका में, कनाडा में उन्होंने आइडियोलॉजीज छोड़ दिए। मजहब भी एक आइडियोलॉजी है, मजहब को उन्होंने छोड़ दिया, आइडियोलॉजीज को छोड़ दिया, कम्युनिज्म को छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ फिलॉसफी और साइंस पे काम किया, क्योंकि फिलॉसफी आपको रैशनल बनाती है, आपको जज्बाती नहीं बनाते कि जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है, और ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम ये करेंगे वो करेंगे, सुर्ख इनकलाब, दुनिया के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ अमीरों के हम ईंट से ईंट बजाए। तो ये सारी आइडियोलॉजीज की बातें हैं, ये सारी जज्बाती बातें हैं। अब कभी भी आपको अमेरिका नहीं मिलेगा कि वो अपने प्रोपेगेंडा करेगा या कोई तकरीर करेंगे। ट्रंप में थोड़ा सा वो पॉपुलिज्म था, लेकिन बाकी बाइडन वगैरह या ये जो ओबामा है वो जब स्पीच करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई लेक्चर दे रहे हो। उनमें कोई जज्बाती बातें नहीं होती, उनमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। आपने देखा होगा कि ये जो मार्क्सिस्ट है या जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, स्टडी सर्कल करते हैं जी, प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, एशिया सुर्ख है, ये है वो है, सारी जज्बाती बातें।
तो इस वजह से आइडियोलॉजी जो है ये ऐसी गपशप है, ये रियल में चेंजेस नहीं लाते। अब देखें कि कम्युनिज्म ने क्या चेंज लाया, कुछ भी नहीं। कैपिटलिज्म जो एक सिस्टम है, साइंस बेस्ड है, और एडम स्मिथ जो एक फिलासफर था, उसने कम्युनिज्म दिया, कैपिटलिज्म दिया दुनिया को। तो कैपिटलिज्म ने दुनिया को चेंज कर दिया। अमेरिका को कहा से कहा जो है ना वो छोड़ दिया। नाउ नंबर 3 इज बीवेयर द barrenness of a busy life. तो they had fear, they were feared of, नहीं, they were scared. Scare, अपने वर्ब्स को सही इस्तेमाल करें, scare. Why they were scared of spreading a communism? तो वो क्या, वो इस्लाम से स्केर्ड नहीं है, तालिबान से स्केर्ड नहीं है, टेररिज्म से स्केर्ड नहीं है, अलकायदा से स्केर्ड नहीं है, ठीक है, दाइश से स्केर्ड नहीं है। क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी थी, वो एक जज्बाती चीज थी। मारो, गोली मारो। कम्युनिज्म की वजह से लाखों मिलियंस लोग मर गए और मारे गए। तो हर आकिल बंदा जो है, हर अकल वाले इंसान जो है वो जज्बाती लोगों से डरता है कि यार ये तो ईंट की ईंट बजा देंगे, तो डरना चाहिए। हाँ, तो देयर इज वाइट सुप्रीमेसी एंड पॉपुलिज्म। ये बिल्कुल जो है, अर्जेंटीना वो एक सोशलिस्ट टाइप कंट्री है। अर्जेंटीना में मैंने 5 साल गुजारे हैं, तो वो उधर भी आइडियोलॉजीज़ और नारेबाजी ये बहुत है। नीदरलैंड जो है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या वो डेमोक्रेसी, फिलासफी और साइंस से आगे पीछे जाता है या उसी पे अपने सिस्टम को चलाता है। Capitalism is not an ideology. Capitalism is an economic system based on psychology, philosophy, human nature. Human nature क्या है? मेरा, मिमजरमा टोलाजमा, मेरी चीज, ये ह्यूमन नेचर है। मेरा बच्चा, मेरा घर, ठीक है, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री। तो ये ह्यूमन नेचर पे बनी है कैपिटलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप। बाकी जज्बाती बातें तो अच्छी अपनी जगह पे है कि जी एक बंदे के पास बहुत पैसा है, दूसरे पास गरीब है, तो ये बात तो अच्छी लगती है, लेकिन है वो आइडियोलॉजी, वो साइंस बेस्ड नहीं है। So the next one is beware the barrenness of a busy life. So please, what do you think about this topic? इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? Beware the barrenness of busy life. Meanwhile that you are writing, so I am also explaining. Beware means khabardar, be aware. It is a warning. It is an instruction. ये आपके लिए खबरदारी है। The barrenness of busy life. Barrenness means the opposite of fertility. Barren, बंजर होना, जरखेज न होना, busy life. जो बिजी लाइफ है ये बंजर लाइफ है, ये नॉन प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है। देयर इज नो प्रोडक्टिविटी इन बिजी लाइफ। अगेन इट इज एन ऑक्सिमोरॉन, it is a paradox, it is irony, it is satire, it is a figure of speech. ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये अजीब किस्म का बयान है, कॉमन सेंस का ये उल्टा है। जो बंदा बिजी होता है तो वो बंजर होता है। नाउ yes, you can go, you can oppose the topic if you have strong arguments. तो इस टॉपिक का मतलब ये कि आपने बिजी लोग देखे होंगे जो क्लर्क टाइप लोग होते हैं, क्लर्क, या ये जो दुकानदार, छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं, बड़ी बिजी होती है। लुक बिजी, डू नथिंग।
लुक बिजी, डू नथिंग। ठीक है ना। वो शेर के बेटी को किसी ने थप्पड़ मारा तो शेर ने कहा कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो चूहा भी इधर उधर भाग रहा था। तो चूहे से किसी ने पूछा कि यार तुम क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा यार मुझ पे भी बादशाह सलामत की नज़र है, मुझ पे भी शक है कि मैंने उसकी बेटी को थप्पड़ मारा है। तो बाकी जानवर हाथी और वो भेड़िए वगैरह तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन चूहा भी नहीं भी अपने आप को बिजी बनाया था कि जी मैं भी बड़ा बिजी हूं। तो कुछ लोग ऐसे ही बिजी होते हैं, कुछ नहीं करते सारा दिन। सेफ टू में 5 मिनट लाइव नहीं आ सकते, 2 वोकैबुलरी का अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन बिजी बड़े जो जी सर मैं बहुत बिजी हूँ सर जी, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, ये मैं बहुत बिजी हूँ जी। ये बिजी तो कारनामा तुमने क्या किया? जो बड़े लोग होते हैं, जो लीडर लोग होते हैं, जो एनालिटिकल स्किल्स वाले लोग होते हैं, टाइम मैनेजर होते हैं, उनके पास इतना टाइम होता है, इतना टाइम होता है, वो कभी बिजी होते नहीं है। मेरा अपना ये हाल है, मैं कभी भी बिजी नहीं होता। हालांकि इतने काम करता हूं, कितने मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाता हूं, कितने लेक्चर्स अटेंड करता हूं, कितने कमेंट्स के मैं जवाब देता हूं, कितना मैं जो है अपने दफ्तर को चलाता हूं, कितने लोगों से मैं मिलता हूं। ठीक है, आज मैंने कोई 200-300 लोगों को लेक्चर दिया यूनिवर्सिटी में। मैंने कितने लोगों से आज मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर भी मैं बिजी नहीं हूं। आप अभी कह दीजिए सर जी अब मुझे कोई 5 घंटे लेक्चर दे, मैं कहा ठीक है देता हूं। ठीक है, आज ये सर मुझे जो है ना कोई 50 पेजेस का ऐसे लिखो, मैं लिखता हूं अगर चाहता हूं तो दिस इज बी अवेयर द बैरननेस ऑफ ए बिजी लाइफ। सो लुक बिजी, डू नथिंग। लुक बिजी, डू नथिंग। ये इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि जो बिजी बंदा है वो प्रोडक्टिव भी होगा। रिजल्ट्स मैटर, प्रोडक्टिविटी मैटर, स्मार्ट वर्क मैटर। गद्दा हमें क्यों कबूल नहीं है? हालांकि वो हमारे काम करता है, हमारा बोझ उठाता है, ताबेदार होता है, हर वक्त खड़ा होता है। और शेर जो है हमें खाता है, और शेर जो है हमारे किसी काम का नहीं है। शेर हमें एक पैसे का काम नहीं करता, लेकिन शेर से हम मरऊब है। शेर हम लव करते हैं शेर के साथ। शेर हमारा सिंबल है। शेर आया जी, शेर आया, नवाज शरीफ आया। तो शेर जो है वो कितनी बड़ी चीज है। हालांकि शेर हमारी 1% की चीज नहीं है। शेर का गोश्त भी कोई नहीं खाता। गधे का गोश्त या घोड़े का गोश्त तो कभी कोई खा भी लेगा, लेकिन शेर चूंकि स्मार्ट वर्कर है, लीडर है, किंग है, रोब है उसका, तो हमें वो ज्यादा पसंद है। तो आप लोगों ने इसका सही एक्सप्लेनेशन किया है, तो मैंने भी आपको ये एक्सप्लेन किया। Then why people were lived in collaboration if ownership is the part of human nature? I think capitalism forcefully inserted greed into human. No, no, no. Nobody lived in any collaboration. It is just a myth. Then why people lived? Were lived कोई टेंस नहीं है सईद अहमद साहब। वर lived जो है ये अंग्रेजी का कोई टेंस नहीं है। अंग्रेजी के कितने टेंस है? 3, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, और हर एक की फिर 4-4 किस्में हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 12 में कोई चीज नहीं है वर लीव्ड। तो सिंपल क्या है, या लीव्ड होता है या वर लीविंग होता है। कोलैबोरेशन कोई नहीं है ना। ईगोइज्म जो है, मैं, ये इंपॉर्टेंट है। एल्ट्रुइज्म जो है एक है ही नहीं। हम कोलैबोरेट इसलिए करते हैं कि हमें उसमें फायदा होता है। ठीक है ना। अभी देखें ना, किसी मार्केट को कहे, पूरा मार्केट, कि जी हम पूरी मार्केट में 20 दुकानें हैं तो इसको हम इकट्ठे चलाएंगे, कभी भी नहीं चलेगा। इतना उसमें मसाइल होते हैं, इतना उसमें झगड़े होते हैं। हर बंदा अपना दुकान अलहदा चलाते हैं तो सब ठीक चलता है। कोलैबोरेशन कोई नहीं है। दो भाई एक दूसरे का कोलैबोरेट नहीं करते। जब बाप मर जाता है
तो हर भाई कहते कि जी मेरी ज़मीन मुझे दे दो, और बाप ने भी ज़मीन अपने भाई से ली होती है। तो ये सारी जो है ड्रामे हैं, दिल को खुश करने के लिए बातें हैं, अच्छी बातें हैं, प्यारी बातें हैं, भाईचारा। अब मुसलमान देखो 53 ममालिक है, किसी ने एक गोली चलाई उसके लिए, हमास के लिए या फ़लस्तीन के लिए? ईरान को देखो कितना बड़ा 30 मार खान बन रहा था, हीरो बन रहा था, एक गोली किसने चलाई? नहीं। किधर है भाईचारा? रियलिज्म को पढ़ो, ईगोइज्म को पढ़ो, ऑब्जेक्टिविज्म को पढ़ो, वो आपको लगेगा कि ये वाकई ये सही बातें हैं। ओके, लास्ट वन इज ट्रुथ इज लीव्ड नॉट टॉट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ दिल को खुश करने की बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें, मेरी भाई, मेरी जान, मेरे मुसलमान, मेरी कम्युनिस्ट, कामरेड, ये सारे जो है इंसान ने बच्चों की तरह अपने आप को खुश करने के लिए बहाने बनाए हैं, लेकिन ये नेचर में, ये रियलिटी, ये ट्रुथ नहीं है। अब एक चीज़ की मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि ये कोई ट्रुथ नहीं है। अब सांप है, सांप मौजूद है लेकिन जहरीला है। कम्युनिज्म मौजूद है लेकिन गलत है। ट्रुथ इज लीव्ड कॉमा नॉट टॉट। So please explain this topic. I have another lecture now in IR, so let us finish this one. Truth is lived not taught means easier said than done. Easier said than done. कहना आसान है, करना मुश्किल है। Words speak, action speaks louder than words. Action speaks louder than words. एक्शन जो है वो बोलता है, अल्फाज से ज्यादा बोलता है। ठीक है? फिजिशियन हील दाई सेल्फ। फिजिशियन हील, HEAL, हील दाई सेल्फ। दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ। ए डॉक्टर, पहले अपना इलाज करो। अब डॉक्टर खुद बीमार है तो किसी और का क्या इलाज करेगा? सो ट्रुथ इज नॉट just teaching what is truth, types of truth, and we should be true, and truth is very good thing, and this and that, lectures, philosophies. No. Action. Be a true person. Convert your thoughts into words and words into action. So truth is not for discussion. Truth is not for just talks. If you want to be true, so be true person in your actions. Deeds matter. Deeds matter. कि आपकी जो अमाल है वो मैटर करता है। That is important. अमाल सालेहा, नेक अमाल, virtuous actions. बातों से काम नहीं चलता, काम से काम चलता है। एक बंदा कहते हैं जी मैं स्टडी करता हूं, तो करो। सिर्फ प्लानिंग करना, बातें करना, ख्वाब देखना, ये जो है कोई चीज नहीं है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू आउटलाइंस एंड सम पैराग्राफ्स ऑन दिस 4 टॉपिक्स। 1 2 3 4, यस, 4 टॉपिक्स। और ये CSS के पुराने टॉपिक्स है और ये नॉन इश्यूज बेस्ड है। इसमें इशू नहीं है, ये इसमें जनरल डिस्कशन है। फिलॉसफी है और आर्ट है और लिटरेचर है, इसमें जनरल लाइफ की चीजें है। सो इफ यू हैव एनी क्विक क्वेश्चन सो प्लीज आस्क, अदरवाइज लेट्स गो टू IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स। जिन्होंने IR लिया है
तो उनका करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। और करंट अफेयर्स के लिए आपको आईआर की नॉलेज चाहिए। So I don't see any question. If I see it later, tag me and I will respond in writing. Now let's go to IR classroom.